जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे अपनी सेकंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर, जो है मीडियन। तो मीडियन की डेफिनेशन जो है, मीडियन डिवाइड्स द अरेंज्ड डेटा either ascending or descending into two equal parts in such a way that 50% of the data lies before the median and the remaining 50% of the data lies above it। तो मीडियन आपका करता क्या है? आपके डेटा को पहले तो आप अरेंज करते हैं, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपके अरेंज डेटा को बिल्कुल एग्जैक्टली दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, जिसका मतलब ये हुआ कि मीडियन एक ऐसी वैल्यू होगी जिससे 50% जो डाटा है वो उससे नीचे होगा और 50% जो डाटा है वो उससे अबव होगा। ठीक है। और देखिएगा, मीडियन को कंप्यूट करने का अनग्रुप डाटा के लिए क्या क्या तरीकाकार है। सबसे पहले आप क्या करें, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आप अपने डाटा को स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेके लार्जेस्ट वैल्यू तक आप असेंडिंग ऑर्डर में ले दें। फिर आप क्या करें, कंप्यूट एन इंडेक्स n/2 आप करें। और n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी। अगर तो आपका इंडेक्स जो है वो इंटीजर आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उससे जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन वैल्यू होगी। इफ आई इज नॉट एन इंटीजर, तो आप क्या करेंगे, जो अगली वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन वाली कहलाएगी। कैसे, देखिएगा जरा। मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट्स, ये 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हैं 20, 15, 3, 25, 10। सबसे पहले आप क्या करें, आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दें। तो 3, 10, 15, 20, 25। फिर आप क्या करें, आप इनका इंडेक्स निकालें। इंडेक्स आप कैलकुलेट किस तरह करेंगे, n/2। और n क्या है, आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपकी, क्योंकि 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो आप क्या करेंगे, 5/2 करेंगे। आपके पास जो आंसर है डेट इज 2.5। और क्योंकि 2.5 जो है वो इंटीजर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वैल्यू होगी डेट इज मतलब 3 जो है, वो आपका जो है मीडियन वैल्यू होगी। और ये जो 3 है ये सिर्फ आपको पोजीशन बताएगा कि आपकी जो मीडियन वैल्यू है ये किस जगह पे पड़ी है। ये जो इंडेक्स है आपको सिर्फ लोकेशन आइडेंटिफाई करेगा कि आपकी जो मीडियन वैल्यू है वो कहाँ पे पड़ी है। ये 3 इज नॉट द आंसर, इट जस्ट गिव्स यू द इंडिकेशन दैट वेयर योर मीडियन वैल्यू इज एक्चुअली प्लेस्ड। तो 3 आ गया। You need to look up at the data. So you need to find where your third observation is. That is, your first observation is 3, your second observation is 10, your third observation is 15. So that means your third observation is 15 is your median. So median is actually the 15 is actually the value at which 50% of the observations are below the median value, and then 50% of the observations are above the median value। ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने देखा, when we have like 5 number of observations, then we look up at another example, one made by a cricket player in 4 matches, that is 30, 70, 10, 20. So the first step is you need to arrange the data in ascending order, and that is 10, 20, 30, 70. And the second step is the compute the index, that is n I is equal to n/2, where n is your number of observations. Now we have 4 number of observations. So n4 divided by 2, that is 2. Now when you, since 2 is an integer, so how you going to calculate the median? That is, you need to get the average of second position and plus the third position. So your second position, at position 2 we have the number 2, at position 3 we have 30. So we need to get the average of these two numbers to get the median value. So we have 20 plus 30 divided by 2, that is 50 divided by 2. So we have median value that is equal to 25. So that's how we are going to compute when we have an integer index.
So on your book, the second one is median. So you first need to arrange the data in ascending order from smallest to largest. For the odd number of observation, the median is the middle value. For even number of observation, the median is the average of two middle values. ठीक है? Uh, so we have 5 observations, that is 32, 42, 46, 46, 44. Now we have 5 number of values. The 5 are the odds. So we are going to get the index, that is 5 I is equal to n by 2, that is 5 by 2, that is equal to 2.5. So since 2.5 is not an integer, so the next one is the middle value, that is 3. So the median value is 46. Okay. Suppose we also compute the median salary of for 12 business graduates who first arrange the data in ascending order. ये जो 3.1 का टेबल है, जो हम लोगों ने मीन ऊपर कैलकुलेट किया, वही हम लोगों ने डाटा लिया, उसको असेंडिंग ऑर्डर में किया। और यहाँ पे हमने देखा कि जब आपने इंडेक्स कंप्यूट किया n/2, तो आपके पास 12 ऑब्जर्वेशंस थी। ठीक है, 12 को आपने 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास 6 आ गया। तो आपने 6 वैल्यू प्लस 7th वैल्यू को आपने एवरेज कर लिया, तो आपके पास जो मीडियन वैल्यू है वो 35.3505 आ गया। ठीक है जी। और इसी तरह कुछ क्वेश्चंस आप लोग देखें। यहाँ पे देखिए, कंप्यूट द सैंपल विद डाटा वैल्यूज 10, 20, 12, 17, 16। आपने मीडियन कंप्यूट करना है, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, आप डाटा को अरेंज करेंगे। डाटा को अरेंज करें तो अरेंज किस तरह होगा, 10, 12, 16, 17 और 20। ठीक है, आप इंडेक्स फाइंड करेंगे। इंडेक्स कैसे आप फाइंड करेंगे, इंडेक्स का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 इस वजह से क्योंकि आप अपने डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, तो आप 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5। और 2.5 का जो नेक्स्ट वैल्यू होगी डेट इज 3। अब ये जो 3 है, ये सिर्फ आपको आपकी मीडियन वैल्यू की फाइंड करने में सिर्फ आपको पोजीशन बताएगा कि आपकी मीडियन वैल्यू जो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, आपके डाटा में 3 इज नॉट द आंसर, आपको सिर्फ ये लोकेशन दे रहा है। ठीक है, तो आप अपने डाटा में देखें कि आपके पास थर्ड वैल्यू कौन सी है। तो हमारे पास डाटा में पहली वैल्यू 10 है, दूसरी वैल्यू 12 है, तीसरी वैल्यू 16 है। तो 16 जो है वो हमारी मीडियन वैल्यू है। ठीक है जी। आप सेकंड क्वेश्चन देखें। आपके पास 10 है, 20 है, 21 है, 17 है, 16 है, 12 है। आपको क्या करना है, मीडियन कंप्यूट करना है। तो आप सबसे पहले क्या करें, डाटा को अरेंज कर लें। तो अरेंज कैसे करेंगे, आपके पास पहली ऑब्जर्वेशन आ जाएगी 10, देन 12, देन 16, देन 17, then 20 and then 21। ठीक है, the next step is to compute the index। आप इंडेक्स किस तरह फाइंड करेंगे, आप इंडेक्स फाइंड करेंगे i is equal to n by 2। और n आपका क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो इस डाटा में देखिए आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 6 है। सो 6 डिवाइडेड बाई 2 किया आपने, तो आपके पास आंसर आ गया 3। ठीक है, तो क्योंकि ये आपका आंसर जो है वो इंटीजर आ गया, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है, आपके पास डाटा में थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो 16 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो आपका मीडियन कहलाएगा। ठीक है जी, इस तरह जो है वो आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और इसी तरह आप मीडियन होटल रूम का भी अपने डाटा को सबसे पहले आप अरेंज करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, आपके पास 20 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड बाय 2 किया तो आपके पास 10 आ गया, 10 आ गई। सो 10th ऑब्जर्वेशन प्लस 11th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास मीडियन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, और यहाँ पे देखें आपके पास इंडोरमेंट की क्वेश्चन डाटा है। आपके पास 10 जो है वो यूनिवर्सिटीज हैं, आप इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है,
और आपके पास क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन है, n बाय 2 करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो आपके पास 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास वो मीडियन इंडोरमेंट आ जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे आपके पास ये डेटा है जिसमें आपके पास 4, 8, 12, 16, 20 ऑब्जर्वेशन हैं। आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, और n बाय 2 करेंगे तो आपके पास 20 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो 10th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय प्लस 11th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास मीडियन आ जाएगी वैल्यू। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। ठीक है, अगर इन क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन आएगी तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह जो है वो इनको कंसिडर कर लेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग होम है और न्यू होम्स है, ये दो डिफरेंट डाटा सेट हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले एग्जिस्टिंग होम्स को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, फिर उसका इंडेक्स निकालना है, फिर उसकी मीडियन वैल्यू निकालनी है। फिर न्यू होम्स को आपने व्हाट इज द मीडियन सेल्स प्राइस फॉर न्यू होम्स, तो आप क्या करेंगे, मीडियन न्यू होम्स की वैल्यूज को आप असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, फिर आप उसका इंडेक्स निकालेंगे और उससे मीडियन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, अच्छा हम लोगों ने अभी तक बात की है जी कि जो मीडियन है वो आपके डाटा को जनाब जो है वो दो हिस्सों में एग्जैक्टली जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है जी, इसी तरह अगर हम अपने डाटा को जो है वो चार हिस्सों में डिवाइड करना चाहें तो तब आप उसको कहलाते हैं, सो देन द मेथड इज क्वार्टाइल्स। और क्वार्टाइल्स में जो है वो इट इज ऑफन डिजायरेबल टू डिवाइड डाटा इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, और उसमें जब आप चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट जो है वो 25% ईच आ जाएगा। ठीक है जी, और इस डिवीजन को हम लोग क्वार्टाइल्स कहते हैं। ठीक है, और क्वार्टाइल वन जो है Q1 जो है इज कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टाइल और 25th परसेंटाइल। ठीक है जी, और जो सेकंड क्वार्टाइल है वो आपकी 50th परसेंटाइल है, और Q2 जो है वही आपका मीडियन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि 50% हो जाता है, और Q3 जो है वो आपकी थर्ड क्वार्टाइल है, यहाँ 75th परसेंटाइल है। ठीक है, हम लोगों ने जो भी ऊपर डाटा देखा था स्टार्टिंग सैलरी वाला, वही डाटा हम लोग लेते हैं, तो उसको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग पहले क्वार्टाइल वन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, डेट इज पी डिवाइड बाई 100, क्या आप कितनी परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं। क्वार्टर ऑफ वन में हम लोगों ने देखा क्या 25% है, तो 25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 12 इज एक्चुअल द नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो 12 हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, हम लोगों ने कैलकुलेशन की तो हमारे पास आंसर आ गया 3। तो आपका 3 का कर्व हुई, अब आपके पास 3 है, 3 इज एन इंटीजर, तो थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। आपकी यहाँ पे थर्ड वैल्यू कौन सी है, डेट इज 3450, फोर्थ वैल्यू 3480, इन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 करोगे तो 3465 इज योर Q1 क्वार्टाइल वन। ठीक है, क्वार्टाइल टू आप लोग ऑलरेडी आपने निकाल ली है मीडियन के थ्रू। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मीडियन कहा जाए तो मीडियन कैलकुलेट करना है तो आप परसेंटाइल के थ्रू किस तरह कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्योंकि आप लोग मीडियन में अपना डाटा 50 एक्चुअल 50 में डिवाइड कर रहे थे तो 50 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे। ठीक है, 12 इस वजह से कि 12 आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं। ठीक है, तो आपके पास जो भी आएगा उससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप क्वार्टर थ्री कर रहे हो, क्वार्टर थ्री में आपको पता है कि 75% तक आपने डाटा लेना, तो 75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2, तो दैट इज आंसर इज 9। तो आप अपने नाइन्थ ऑब्जर्वेशन देखें, क्योंकि 9 जो है वो आपका इंटीजर है, तो नाइन्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 10th ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे डाटा में नाइन्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो 3550 है प्लस 3650 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास 3600 आ जाएगा, ये आपकी Q3 आ जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे देखें, ये देखिए एक चार्ट है, आपके पास डाटा पूरा इस तरह होता है। Q1 आपकी फर्स्ट क्वार्टाइल है जिसमें आपके पास 25-50% होती है, आपका डाटा का 25% हिस्सा इधर होता है। फिर सेकंड क्वार्टाइल 50% में कहलाती है, मीडियन भी कहलाता है, और आपकी जो है वो मीडियन भी कहलाती है। यानी कि मीडियन, यहाँ पे देखिए मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे 50% वैल्यूज जो आपकी लेस होती हैं और 50% वैल्यूज ही आपकी अबव होती हैं, ठीक है। तो मीडियन से लेके Q2 से लेके Q3 तक आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, 25% ऑब्जर्वेशन है, और टोटल जो है वो 75% ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इसको आप लोग थर्ड क्वार्टाइल या 75th क्वार्टाइल भी कहते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें हम लोगों ने जो डाटा था उसमें ये जो पहली Q1 निकाला तो वो Q1 की लोकेशन ये थी, Q2 की लोकेशन ये थी, और Q3 की लोकेशन जो है वो 3600 थी, ठीक है। तो आपने अपने डाटा को 4 हिस्सों में अब डिवाइड कर लिया, ठीक है जी। अच्छा जी, हमने पहले सबसे पहले देखा मीडियन देखा, जिसमें हमने देखा कि अपने डाटा को हम 2 हिस्सों में किस तरह डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ जो मीडियन वैल्यू है वो एक ऐसी वैल्यू हमें प्रोवाइड करती है जब हमारा डाटा जो है वो एग्जैक्टली 15, मीडियन वैल्यू ऐसी होती है जो एग्जैक्टली जो है वो 50% वैल्यूज उससे कम होती हैं और 50% वैल्यूज जो है वो उससे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। फिर हमने अपने डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, और उस प्रोसेस को हम लोगों ने क्वार्टाइल्स का, जिसमें हम लोगों ने क्वार्टाइल 1 पढ़ा जिसमें उससे कम 25% वैल्यूज होती हैं, फिर क्वार्टाइल 2 में 50% वैल्यूज होती हैं, और क्वार्टाइल 3 में 75% वैल्यूज होती हैं, ठीक है जी। अगर हम सपोज करें हमने तो अभी 4 हिस्सों में डिवाइड किया, फर्ज करें अब हम अपने डाटा को 100 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो तब जो है वो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आएगा वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, वो होगा कॉन्सेप्ट आपका परसेंटाइल्स का, ठीक है। कि आप अपने डाटा को चाहे तो आप जितने मर्जी हिस्सों में डिवाइड कर लें, ठीक है। फॉर्मूला वही है, इंडेक्स आप कंप्यूट करेंगे P/100। P फर्ज करें मैं कहता हूँ 33% आपको डाटा का चाहिए, तो P की यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 33/100 मल्टीप्लाई बाय n जो है वो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि 70% मुझे डाटा चाहिए, तो P यहाँ पे क्या आ जाएगा, 70/100 आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, अगर आपके पास इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो वो वाली वैल्यू प्लस उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू का आप एवरेज ले लोगे। अगर इंटीजर नहीं होगी तो आप जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो आपकी परसेंटाइज रिस्पेक्टिव परसेंटाइल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास वही डाटा है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 85 परसेंटाइल निकालें, तो P क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा, डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 जो है वो आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ गई 10.2। अब 10.2 जो है वो इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो जो इससे नेक्स्ट वैल्यू होगी डेट इज 11th जो होगी वैल्यू वो आपकी 85th परसेंटाइल होगी। दोबारा सुनिएगा, ये जो 10.2 है ये आपका आंसर नहीं है, ये सिर्फ आपको लोकेशन आइडेंटिफाई करता है कि आपकी जो 85th परसेंटाइल की वैल्यू है वो किस लोकेशन पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो क्योंकि ये वैल्यू जो है वो पॉइंट में आ गई है, इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इससे जो नेक्स्ट वैल्यू होगी यानी कि 10.2 है, तो जो भी नेक्स्ट होगा वो 11 हो जाएगा, उस लोकेशन पे आपके जो है वो 85th परसेंटाइल की वैल्यू पड़ी हुई है। तो 11th लोकेशन पे हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है वो है 3730, दैट इज योर 85th परसेंटाइल वैल्यू, ठीक है जी। और अगर आप 50% वैल्यूज लेते हैं तो 50% ही आपकी वैल्यू जो है वो मीडियन कहलाती है, ठीक है। और इसके जो आप प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं वो आपके पास यहाँ पे देखें मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, आपके पास ये डाटा है, आप इसमें 20th परसेंटाइल किस तरह कंप्यूट करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन जो है वो आपका 8 हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, फिर आप इंडेक्स कंप्यूट करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, जो भी आपका वैल्यू आएगी, अगर तो वो इंटीजर नहीं होगा तो उससे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपका 20th परसेंटाइल वैल्यू हो गई, और अगर वो इंटीजर हुआ तो वो वैल्यू प्लस उससे नेक्स्ट वैल्यू का आप एवरेज लेंगे तो वो आपकी 20th परसेंटाइल हो जाएगी, ठीक है। अ, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब यह है कि आपको 25%, और थर्ड का क्वार्टाइल जो है वो आपका 75 परसेंटाइल है, ठीक है जी।
कंप्यूट द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल, Q1 आप कंप्यूट करेंगे और आप Q3 कंप्यूट करेंगे, ठीक है जी। और ये देखिए आपको कंप्यूट द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल, आप Q1 25th परसेंटाइल और कोई 3 जो है वो 75% और 90th परसेंटाइल दैट इज 90 डिवाइड बाय 100, ठीक है जी। इस तरह आप कंप्यूट करेंगे, ठीक है जी। आप लोग ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन आएगा तो हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी तक तो हम लोगों ने देखा अनग्रुप डाटा के हवाले से, ठीक है। मीडियन हम लोगों ने देखा कि मीडियन एक ऐसी वैल्यू है जो आपके डाटा को एग्जैक्टली जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। मीडियन वैल्यू ऐसी होती है जिससे 50% वैल्यूज जो है वो आपकी कम होती हैं, 50% वैल्यूज जो है वो आपकी ज़्यादा होती हैं। फिर हम लोगों ने अपने डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, उस प्रोसीजर को हम लोगों ने क्वार्टाइल्स का Q1 कहा, फर्स्ट क्वार्टर है जिसमें 25% आपकी ऑब्जर्वेशन होती हैं। फिर Q2 था जिसको आप मीडियन भी कहते हैं, उसमें आपकी 50% वैल्यूज होती हैं। Q3 था जो आपकी थर्ड क्वार्टाइल होती है या आपकी अपर क्वार्टाइल होती है, जिसमें आपके पास 75% डाटा होता है। ये आपने देखा। फिर आपने देखा कि अगर आप अपने डाटा को परसेंटाइल्स में 100 हिस्सों में तकसीम करना चाहें तो फिर आपके पास क्या होगा। आप उस तरीका सभी का सेम है। पहले आप सबसे पहले स्टेप वन पे क्या करते हैं, आप अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। सेकंड स्टेप में आप इंडेक्स कंप्यूट करते हैं। जब आपके परसेंटाइल में था तो आपने पी डिवाइड बाई 100 किया। अब वो जो पी था फर्ज करें वो 33 भी हो सकता है, 20 परसेंटाइल भी हो सकता है, 47 परसेंटाइल भी हो सकता है, 92 परसेंटाइल भी होता है। जो भी हो वैल्यू आपको कहा जाए, आप पी की जगह वो प्लेस करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एन करेंगे। एन जो है वो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। जो भी आपका इंडेक्स वैल्यू आएगी अगर तो वो इंटीजर नहीं होगा तो आप उसको नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर राउंड ऑफ करेंगे। जो भी नेक्स्ट वैल्यू पे आपका राउंड ऑफ होगा वो आंसर नहीं होगा, वो जस्ट आपको इंडिकेशन दे रहा होगा कि आपकी वैल्यू जो है, रिस्पेक्टिव वैल्यू जो है वो आपके डाटा सेट में कहाँ पे पड़ी हुई है। और अगर वो वैल्यू जो है वो इंटीजर आ जाती है तो आप क्या करेंगे, वो वैल्यू प्लस उससे नेक्स्ट वैल्यू की आप एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो हम लोगों ने अनग्रुप डाटा के हवाले से पढ़ा। अभी अगर हमारे पास जो है वो ग्रुप डाटा हो तो फिर हम लोग के किस तरह करते हैं मीडियन कंप्यूट, तो देखिएगा। मीडियन का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी। इसमें ज़रा देखिएगा कि L आपका क्या होता है। आपकी L जो है वो आपकी लोअर क्लास बाउंड्री होती है मीडियन क्लास की। जो F है वो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की। एन जो है वो आपका समीशन एफ होता है जो कि टोटल फ्रिक्वेंसी होती है। सी जो है वो आपका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है मीडियन क्लास से पहली वाली क्लास की। और एच जो है वो क्लास इंटरवल होता है, ठीक है। हम लोग इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, तब आपको ये चीज़ें जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए जी, हमारे पास एक डाटा है, मार्क्स है। कैलकुलेट मीडियन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स प्रोवाइडेड बिलो। ये कुछ मार्क्स हैं और कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ये जैसे कि 30 से लेके 39 तक जो है वो टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं। 40 से लेके 49 तक जो है वो 87 स्टूडेंट्स हैं। 50 से लेके 59 तक 190 स्टूडेंट्स हैं। 60 से लेके 69 तक जो है वो 304 स्टूडेंट्स हैं। 70 से लेके 79 तक 211 स्टूडेंट्स हैं। 80 से लेके 89 तक जो है वो 85 स्टूडेंट्स हैं। 90 से लेके 99 तक 20 स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले आप जो कैलकुलेशन का तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले अपना फार्मूला लिख लें। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस चीज़ की
कैलकुलेशन करनी है। तो मीडियन का जो फार्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें तो सबसे पहले जो है वो हमारी, क्योंकि क्लास लिमिट्स बनी हुई है, क्लास बाउंड्रीज नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे, ठीक है। और क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका यही है कि आपने अपर क्लास और लोअर क्लास को देखना है, अगर तो डिफरेंस हो तो आपने उसकी एवरेज लेके कर लेना। तो 40 माइनस 39 करेंगे, डेट इज 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 को आप अपनी लोअर क्लास लिमिट में माइनस करें और 0.5 को आप लोग अपर क्लास लिमिट में ऐड करें। तो जब आप लोअर क्लास लिमिट में माइनस करेंगे तो 30 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 29.5। और जब आप 39 में प्लस 5 करेंगे, 0.5 करेंगे तो 39.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये इस तरह आ गया, ठीक है। आपने क्या किया, 30 में 0.5 माइनस किया तो 29.5 आ गया, 39 में आपने प्लस 0.5 किया तो 39.5 आ गया। तो आप क्या करें, यही प्रोसीजर आप पूरी के साथ बनाएं तो ये देखें आपकी क्लास बाउंड्रीज बन गई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, सी चाहिए, तो आप क्या करें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बना लें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का तरीकाकार वही है कि पहला सबसे आपका कॉलम जो है वो 80 रहेगा, अब उसमें अगली जो है वो फ्रीक्वेंसी ऐड होती जाएंगी। तो देखेंगे 88 प्लस 87 करेंगे तो 95 आ जाएगा, 95 प्लस 190 करेंगे तो आपके पास जो है वो 285 आ जाएगा, 285 प्लस 304 करेंगे तो आपके पास 589 आ जाएगा, 589 प्लस 211 करेंगे तो आपके पास 800 आ जाएगा, 800 प्लस 85 करेंगे तो 885 आ जाएगा, 85 प्लस 20 करेंगे तो आपके पास 905 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये तो चीज़ होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होगी। अब आप क्या करें, अब सबसे पहले आप क्या करें, आप अपनी मीडियन क्लास जो है वो फाइंड करें। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास जो डाटा में n/2 है जो है ये, इससे हमें मीडियन क्लास को पता चलेगा। तो n क्या है आपके पास टोटल, ये देखें आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड किया, n इज इक्वल टू समेशन ऑफ 905। तो 905 को आपने डिवाइड किया 2 पे तो 452.5। अब आप 452.5 को देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के किस कॉलम में आ रहा है, पहले कॉलम में भी नहीं आ रहा, दूसरे कॉलम में भी नहीं आ रहा, तीसरे कॉलम में भी नहीं आ रहा, फोर्थ कॉलम में आपका 452.5 आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करें, उसको हाईलाइट कर लें इस तरह, ठीक है। ये जो आपकी क्लास है ये आपकी मीडियन क्लास कहलाएगी, ठीक है जी। जिस कॉलम में आप n/2 करेंगे, सबसे पहले n/2 आपने किया तो जो आपकी समेशन एफ को डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो आपकी वैल्यू जहाँ पे प्लेस हो रही होगी आप उसको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। वो आपकी मीडियन क्लास कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमने ये देखें आपके पास फॉर्मूला जो था वो L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी था। अब L जो था वो आपका लोअर क्लास लिमिट बाउंड्री था जो कि आपकी मिडिल क्लास की थी। तो हमारे पास L जो है वो 59.5 है, H जो है वो क्लास इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल आप देख लें, आप दोनों कंजेक्टिव अपर क्लास या दोनों कंजेक्टिव लोअर क्लास को माइनस करें तो 70 माइनस 60 करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी जो है वो आपकी रिस्पेक्टिव मीडियन क्लास की है, डेट इज 304। और सी हम लोगों ने बात की थी कि जो मीडियन क्लास से ऊपर वाला उससे पहले वाली जो होगी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वो आपका सी कहलाएगी। तो यहाँ पे देखें मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, एल जो है वो आपका 59.5, एफ जो है वो आपका 304, सी जो है वो आपका 285 और एच जो है वो आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले में आप अपनी वैल्यूज प्लेस करेंगे, ठीक है। और आपके पास जो है वो मीडियन का आंसर निकल आएगा, ठीक है जी। मैंने कैलकुलेशन नहीं की, ठीक है। वो कैलकुलेशन मैंने आप लोगों पे छोड़ी है, आप लोग कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है। और मुझे आंसर जो है वो नेक्स्ट सेशन में बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, मीडियन के जो फायदे, मीडियन का सबसे पहला जो है मेरिट जो है वो इजी टू कैलकुलेट और अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। और मीडियन जो है वो आपका जो है वो सिमेट्रिक और डाटा के लिए भी बहुत अच्छा, उतना ही अच्छा वर्क करता है जितना आपका स्क्यू डाटा के लिए करता है, ठीक है। जबकि जो मीन है वो आपका सिर्फ सिमेट्रिक डाटा के लिए सूटेबल है, स्क्यू डाटा के लिए सूटेबल नहीं है। और जो मीडियन का
मेरिट है वो ये है कि मीडियन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि आप देखें 1 2 3 4 5 का मीडियन अगर फाइंड करें तो वो 3 है। अब अगर 5 की जगह आप 20 भी रिप्लेस कर दें तब भी जो है वो मीडियन जो है वो 3 ही रहेगा। मीडियन यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। मीडियन का जो डीमेरिट है वो ये है कि मीडियन में आपके पास डाटा कई दफ़ा हमारे पास बहुत लंबा होता है, तो आपको उसमें ऑर्डर में करने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। क्योंकि आजकल हमारे पास जो है वो डाटा सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनमें जो है मीडियन कंप्यूट करना ईजी होता है, ठीक है। तो आज का जो है वो हमारा टॉपिक यही था। हम लोगों ने पहले मीडियन देखा अनग्रुप डाटा के हवाले से, और देखिए यहाँ पे अगर आपको क्वार्टाइल्स में अगर आपको कहा जाए कि आपको क्वार्टाइल्स ग्रुप डाटा के लिए कैसे निकालना है, तो आप देखें जहाँ पे n/2 है वहाँ पे आप अगर n/4 कर देंगे, 1 n/4 करेंगे तो आप फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर आप मीडियन निकालें तो 2 n/4 करेंगे जो कि अल्टीमेटली n/2 आ जाएगा। अगर आपको थर्ड क्वार्टाइल कहा जाए तो आप किस तरह निकालेंगे, आप 3 n/4 करेंगे। तो आपको जब आप फर्स्ट क्वार्टाइल निकालेंगे तो आप n/4 करेंगे, तो आप उसी तरह n/4 करेंगे, जो आपके पास वैल्यू आएगी आप उसका उसको इस तरह करके आप अपनी वो जो क्लास है उसको हाईलाइट कर लेंगे। उस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो आपकी एल होगी, जो उस क्लास की फ्रिक्वेंसी होगी रिस्पेक्टिव वो आपकी एफ होगी, उससे पीछे वाली जो है वो आपकी सी होगी, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला जो वो सिंपल सिर्फ n/4 हो जाएगा। मीडियन के लिए 2 n/4 है, और क्वार्टाइल के लिए 3 n/4 है, ठीक है। और आप लोगों ने इसी क्वेश्चन को लेके आपने फर्स्ट क्वार्टाइल भी निकालनी है, सेकंड क्वार्टाइल इज योर मीडियन जो हम लोग कंप्यूट कर चुके हैं, आपने थर्ड क्वार्टाइल भी इसके ऊपर निकालनी है, ठीक है। और आपने नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी आज के लेक्चर में किया पढ़ा क्या, हम लोगों ने पहले मीडियन देखा अनग्रुप डाटा के हवाले से, फिर हम लोगों ने क्वार्टाइल्स पढ़ी अनग्रुप डाटा के हवाले से, फिर हम लोगों ने परसेंटाइल्स पढ़ी अनग्रुप डाटा के हवाले से, फिर हम लोगों ने मीडियन पढ़ा ग्रुप डाटा के हवाले से, मीडियन कंप्यूट किस तरह होता है, फिर हम लोगों ने क्वार्टाइल्स पढ़ी अनग्रुप ग्रुप डाटा के हवाले से, और फिर हम लोगों ने मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़े ग्रुप डाटा के हवाले से, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू।